Hello dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our communicative English book. We are going to do Unit 2.2, that is Black Beauty. Black Beauty यानी काली खूबसूरती. यानी this is the lesson about a very nice animal, and that is a horse. Now here you can see below is given a part of the most popular horse story. It was written by Anna Sewell. She was born in 1820 in England. Her mother was the writer of many children's books. As a child, Anna once fell and injured her ankle. She was disabled for the rest of her life. Since she couldn't walk, she learned to drive a horse-drawn carriage and regularly drove her father to work. She became aware of the cruel way in which many horses were treated. During the last years of her life, Anna was confined to her house as an invalid, and then to draw attention to the welfare of horses, she wrote a book titled Black Beauty, the autobiography of a horse. In it, a beautiful horse called Black Beauty tells the story of his own life and adventures. Now, you will read a part of the story. Now, children, in this story, this is a story written by Annie Sewell. शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. उनका जन्म इंग्लैंड में 1820 में हुआ था और उनकी मम्मी एक चिल्ड्रंस बुक की राइटर थी. और जब वो छोटी थी तो उसको एक बार गिर गई तो उसके एड़ी में या एंकल में चोट लग गई. इसकी वजह से वो बाकी की ज़िंदगी डिसेबल बन के रही और शी कुडंट वॉक, वो चल नहीं पाती थी. इसलिए उन्होंने कैरेज, हॉर्स कैरेज, जो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो चलाती थी और रेगुलरली ड्रो पापा को छोड़ने और लेने जाती थी. और उसको पता था कि कैसे लोग हॉर्स को ट्रीट करते हैं बुरी तरह से. और अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में ऐना को घर पे ही रहना पड़ा क्योंकि शायद उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी. और फिर उन्होंने लोगों का ध्यान हॉर्स के वेलफेयर के बारे में क्या होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी. और ब्लैक ब्यूटी इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स, यानी हॉर्स अपनी बारे में खुद बातें करता है. ऑटोबायोग्राफी यानी हम अपनी बात कहते हैं. एंड सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. वी विल सी इट नाउ. माई अर्ली होम, the first place that I can remember well was a large pleasant meadow. It had a pond of clean water in it. Some shady trees leaned over the pond, and water lilies grew at the far end. Over the hedge on one side, I could see our master's house. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime, I ran by her side, and at night, I lay down close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of trees. When it was cold, we had a nice warm shed at one end of the meadow. भी ऐसा बोल रहा है, ये जो हॉर्स है वो अपनी बात कर रहा है कि माई अर्ली होम में, यानी मेरा पहला घर, मुझे याद है, जहाँ तक हॉर्स ऐसा बोलता है कि वो बहुत अच्छे दिन थे. हम एक मीडो यानी पूरा ग्रासी एरिया, सी आर इट इज़ रिटन, एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास फॉर फीडिंग एनिमल्स. वहाँ रहते थे. वहाँ एक क्लीन वाटर का तालाब जैसा छोटा था, अच्छे बड़े बड़े ट्रीज़ थे, वाटर लिलीज था, फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छा था. हेज यानी जो ऐसे बाउंड्री जैसा बनाते हैं, फेंसिंग जैसा, वो वहाँ पे हम मास्टर का घर था. मैं जब बहुत छोटा था तो हम वहाँ पे रहते थे और मैं अपनी मम्मी के मिल्क पे ही फीड करता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं घास खा नहीं पाता था. और दिन में मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास चला जाता था और रात को उनके बाजू में ही लेट जाता था. और जब बहुत गर्मी होती थी तो हम लोग पॉन्ड के पास ट्रीज़ के शेड में खड़े रहते थे. और जब ठंडी होती थी तो हम बाहर शेड जैसा था वहाँ पे खड़े रहते थे. नेक्स्ट पेज. As soon as I was old enough to eat grass, my mother returned to her work. She was pulling our master's carriage. She used to go in the morning and come back in the evening. There were 6 young colts in the meadow besides me. One day we were galloping all together round and round the field while
Galloping, the colts were frequently biting and kicking each other. When my mother saw this, she called me and said, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. Your father has a great name in these parts. Your grandfather was famous racehorse and your grandmother had a very sweet temper. And I think you have never seen me kick or bite. I hope you too will grow up gentle and good. Never learn bad ways, always do your work with a spirit of goodwill. Never bite or kick even in play. Lift your feet up well when you trot. I have never forgotten my mother's advice. I know she was wise old mare and our master loved her dearly. अभी जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ हॉर्स वो घास खाने लगा तो उसकी मम्मी माई मदर रिटर्न टू वर्क। फिर कि उसकी मम्मी काम पे लगे। कौन सा काम होता है उसका? जो मालिक थे उसकी कैरेज यानी हॉर्स कार्ट को खींच के ले जाना, मालिक को बिठाकर और वापस लाना। और ये वो रोज़ करती थी, सुबह जाती थी और शाम को आती थी। तो वो अपने मालिक को रोज़ सुबह ले जाती थी और शाम को आती थी। यानी ये हॉर्स वहाँ अकेला रहता था। और देर वर 6, उसके अलावा दूसरे हॉर्सेस के बच्चे कोल्ड्स वहाँ पे 6 थे इसके अलावा, यानी टोटल 7 जन थे। एक दिन वो लोग सब आपस में झगड़ा झगड़ी कर रहे थे, सब गोल गोल घूम रहे थे फील्ड में और एक दूसरे को मार रहे थे, बाइटिंग कर रहे थे, लात मार रहे थे। वही मम्मी ने आके देखा और उसने अपने बच्चे को, ब्लैक ब्यूटी को बुलाकर बोला कि मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि तेरे पापा थे, उनका बहुत नाम था इतने पूरे एरिया में, और तेरे दादा थे वो फेमस रेस के हॉर्स थे, और दादी थी वो भी बहुत स्वीट शांत स्वभाव वाली थी, और तूने मुझे भी किसी को लात मारते या डांट काटते हुए नहीं देखा। तो मैं चाहती हूँ तू भी अच्छा बने, जेंटल और गुड बने, बुरी आदतें नहीं सीखनी चाहिए और हमेशा अपना काम पूरे दिल से करना चाहिए और किसी को काटना, लात मारना खेल में भी नहीं करना चाहिए, और हमेशा जब चले तब पैर उठा के चलना चाहिए। और मैंने मेरी मम्मी की बात कभी नहीं भूली, मेरी मम्मी ने मुझे ये सब अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। सो यू ऑल्सो लर्न ऑल दिस गुड थिंग्स फ्रॉम मी एंड बी गुड and love your master dearly. As I love my master, you also love your master dearly. Our master was a kind and gentle person. He gave us good food and good lodging. He spoke to us as kindly as he did to his own children. When my mother saw him at the gate, she would neigh and with joy and trot up to him. Our master would pat and stroke her. Well, old Pat, he would say, how is your little darky? Then he would give me a piece of bread, which was very tasty. Sometimes he brought a big red carrot for my mother. My mother's name was Duchess, but he often called her Pet. I was dull black, so he called me Darky. As I grew up, my black coat became very fine, soft and bright. When I was 4, my master broke me in. I felt very terrible when a thick piece of steel was pushed between my teeth and tongue and held fast by leather straps. As a further part of my training, I was put in the field with sheep and cows. This field was next to the railway line. I shall never forget the first train that ran by. I thought it dreadful, but the cows went on eating quietly. They didn't even raise their head as the frightful thing went roaring past. Eventually, I found that this terrible creature never came into the field or did me any harm. Since then, I am as without fear at a railway station as in my own stable. अभी बाद में क्या हुआ कि उसके मास्टर बहुत अच्छे इंसान थे. ही वॉज काइंड एंड जेंटल. ही गेव गुड फूड. अच्छे रहने की फैसिलिटीज़ भी हॉर्स को देते थे और प्यार से बातें करते थे. और जब ये मम्मी व्हेन माय मदर जब मालिक को गेट पे देखती थी तो दौड़ के उनके पास जाती थी, तो वो मालिक उसको पैट करते थे, स्ट्रोक करते थे और उसको बोलते थे वेल ओल्ड पैट. और तेरा छोटा बेबी डार्की कैसा है? वो थोड़ा स्किन में डार्क था इसलिए डार्की बुलाते.
फिर उसको पीस ऑफ ब्रेड देते थे. That was very tasty, and sometimes a carrot also. Now the Darky's mother's name was Duchess, and लेकिन वो उनको प्यार से पेट बुलाता था और इसको डार्की बुलाता था. और ये जब बड़ा हुआ हॉर्स तो एकदम उसके बाल एकदम फाइन सॉफ्ट और ब्राइट हो गए. और जब ये 4 साल का था तो उसके मालिक ने उसको मुंह में लेदर स्ट्रैप वगैरह लगा दिया. थोड़ी उसको तकलीफ़ हुई थी उसकी वजह से, क्योंकि स्टील और सब लगा के उसका मुंह बांध दिया था ताकि वो खाली खाने के लिए खुल सके और फिर उसको राइडिंग में वगैरह में ले जा सके. और फिर फर्दर ट्रेनिंग के लिए उसको एक खेत में फील्ड में रखा जहाँ पे बहुत सारे शीप एंड काव होते थे. दैट वाज नेक्स्ट टू अ रेलवे लाइन. एंड द फर्स्ट टाइम द ट्रेन केम तो डार्की गॉट वेरी स्कैर्ड. उसको डर लगा कि अजीब सी चीज़ क्या आई एकदम आवाज़ करती हुई. और फिर ट्रेन तो चली गई वहाँ से. फिर उसको वहाँ रहते रहते पता चला कि दिस इज़ एवरी डेज प्रोसेस. रोज़ ट्रेन आती है जाती है. काऊ थी, काऊ तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, वो तो खा ही रही थी आराम से ग्रास, बिकॉज शी वॉज नॉट अफ्रेड. देन द हॉर्स ऑल्सो रियलाइज दैट ट्रेन विल डू नो हार्म. वो तो जो है अपने आप ही चली जाएगी. सो सी ही स्कैर्ड, कैसा डरा हुआ है ट्रेन की आवाज़ सुनकर. बट सी काउज आर रेटिंग सो नाइसली. सो देन ऑल्सो उसके मन में से भी डर निकल गया. Now, my new master, when I was about 5, I was sold to a man called Square Gordon. My new master was as kind as the first one. There was a discussion between him and his wife as to what I should be called. 2 names, Ebony and Blackbird, were suggested. Then the wife thought of Black Beauty. The Square Gordon liked it. Thus, I was given my new name. Square Gordon had 2 other horses, Ginger and Merrylegs. At first, Ginger didn't like me. She was a beautiful brown mare, but she used to bite and kick. The next day, when Ginger was out, Merrylegs said, "Don't be angry with Ginger. People were very cruel to her when she was young. They used to flog her. The unkind treatment gave her a bad temper. But she works hard, and you will soon begin to like her." And Merrylegs was right. Soon Ginger and I became good friends. We used to pull our master's carriage together. One day, my master harnessed me to his dog cart to take him to town. On our return trip, night had come and storm had risen. अब क्या हुआ कि जब वो अभी हॉर्स हमेशा अपने मम्मी के पास नहीं रहता, थोड़ी एज होती है तो उसको भी काम करने बाहर भेजते. तो जब दिस हॉर्स बिकेम 5 years old, then a man came, Square Gordon, and that was his new master. He was also very kind. He and his wife were discussing कि इसका हॉर्स का नाम क्या रखे. तो 2 नाम डिसाइड किए, एबनी एंड ब्लैकबर्ड. But then his wife said, "No, Black Beauty is very nice name. We shall keep it." So Square Gordon liked that name, and they kept his horse's name Black Beauty, and he got his new name. Then Square Gordon had 2 other horses also. 2 और हॉर्स थे, उनका नाम जिंजर और मैरी लेग्स था. पहले देख जिंजर को ये हॉर्स अच्छा नहीं लगा ब्लैक ब्यूटी, क्योंकि लेकिन वो बहुत अच्छी मैर थी, ब्राउन कलर की जिंजर. और वो शी यूज्ड टू बाइट एंड किक, लेकिन वो काटती भी थी और लात भी मारती थी. तो दूसरे दिन व्हेन जिंजर वाज आउट, मैरीलेग सेड, फिर एक दिन जिंजर बाहर गई थी, मतलब उसको लेके गए थे, तो बोला कि जिंजर से डोंट बी एंग्री विद मैरीलेग्स ने बोला जिंजर से गुस्सा मत होना, उसके साथ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया था जब वो यंग थी, इसलिए वो ऐसी हो गई है. बट शी इज़ अ गुड पर्सन, मीन्स शी इज़ अ गुड हॉर्स. द नेक्स्ट अनकाइंड ट्रीटमेंट, उसके साथ बुरा व्यवहार की वजह से उसका स्वभाव बुरा हो गया है, पर वो बहुत मेहनती है और थोड़े दिन में तुझे भी वो अच्छी लगने लगेगी. और सच्ची बात है, थोड़े दिन में जिंजर और ब्लैक ब्यूटी अच्छे फ्रेंड्स हो गए और वो दोनों मालिक का जो कैरेज था उसको खींच के ले जाते थे. फिर एक दिन मालिक ने उसको डॉग कार्ट के साथ हार्नेस किया, यानी बांधा, और उसको लेकर कहीं जा रहे थे टाउन में. और रिटर्न ट्रिप में रात हो गई और स्टॉर्म भी आ गया, तूफान जैसा था. I was terrified when a huge oak crashed right in front of us and blocked the road. We turned and went the other way along riverside. We came to a narrow bridge, but when my feet touched
The bridge, I felt sure there was something wrong. My master shouted to make me move. He used his whiff also, but neither words nor whiff could make me move. अभी एक दिन कैसा हुआ, बहुत तूफान था, तो एक बड़ा सा पेड़ टूट के उनके सामने गिर गया और एकदम रोड पे। तो वो लोग दूसरे रास्ते से रिवर की तरफ से जाने लगे और एक छोटा सा ब्रिज था, उस पर वो लोग आए। लेकिन हॉर्स को शायद कुछ डेंजर का पता चल गया, तो वो आगे बढ़ा ही नहीं ब्रिज की तरफ, और उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर ने उसको चिल्लाया, उसको हिलाने की कोशिश की, उसको विफ से मारा, पर हॉर्स आगे गया नहीं। सी हियर यू कैन सी ही इज बीटिंग विद द विफ बट द हॉर्स इज नॉट गोइंग। Then a man came out yelling that the bridge had given in the middle. I shall never forget my master's loving words of gratitude and the supper he gave me that night. Now, फिर एक आदमी ने दौड़ के आके चिल्ला के बताया कि आगे तो ब्रिज टूटा हुआ है, बराबर बीच में टूट गया है। तो उसके मालिक खुश हो गए और बोला कि तूने आज तेरी भी जान बच गई और मेरी जान भी बचा दी, और उसको अच्छा खाना उस दिन दिया। These were very nice days. The master was really very good. But now the bad days started, the end of happy days. Then came a sad day. Our mistress had taken seriously ill and had to go away to God's home. Our happy days with her and our kind master were over. Ginger and I were sent to live with a friend of our master. It was a very sad moment for us when we were handed over to our new coachman. Our master came round to pat and speak to us for the last time. His voice sounded very sad. I held my face close to him. That was all I could do to say goodbye. And then he was gone. I have never seen him since. फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत सैड डे आ गया। उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो मर गई। वो बीमार पड़ गई एंड शी पास्ड अवे। फिर वो उसके मास्टर भी अलोन रह गए, अकेले रह गए। तो फिर उन्होंने जिंजर को और ब्लैक ब्यूटी को अपने फ्रेंड के पास भेज दिया, और वो उनकी ज़िंदगी का सबसे सैड मोमेंट था जब वो न्यू कोचमैन उन्हें लेने आया और मास्टर ने पास आके उसके सिर पे हाथ फिराया और सैडली एक दूसरे को देखा। दैट वॉज गुड बाय। बस इसके बाद उसने अपने मास्टर को देखा नहीं। Unfortunately, our new mistress was very different from Square Gordon's wife. She was very proud and thoughtless woman. She made life quite hard for us. We often thought of the loving Square Gordon and his gentle wife, how much they cared for our comfort and happiness. But now all that seemed a sweet dream that had ended forever. और फिर ये जो नई मिस्ट्रेस थी वो बहुत ख़राब नेचर की थी। स्क्वेयर गॉर्डन और उसकी वाइफ के जैसे नहीं थी। शी वॉज़ वेरी प्राउड, बहुत घमंडी, थॉटलेस वूमन, बिल्कुल किसी पे दया नहीं, और एनिमल्स को बैडली ट्रीट करती थी, मारती थी। उसको ये स्क्वेयर गॉर्डन और उसकी वाइफ याद आते थे क्योंकि वो इनका कितना ख्याल रखती थी। बट दिस लेडी वॉज नॉट टेकिंग केयर, और वो उनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे, अच्छे दिन सपने की तरह चले गए। Okay children, now we have finished this lesson. Now textual exercises we'll be doing in the next video.